topic is emergency contraception, and this is the guideline which already in the group. Okay, this is the guideline of the emergency contraception. This is 68 page. So we try to make it the short one. So the emergency contraception, I already told you we have three type of emergency contraception, means or three methods or emergency contraception. There is another name which we call it morning after pill. So we have two pills and then one is IUCD. So the two pills is the one LNG, and this is called ulipristal acetate, and the third one is IUCD. This the best method and is the IUCD, and this emergency contraception depends upon the time factor when she has a last time of unprotected sexual intercourse, UPSI. So we will use the short form, and emergency contraception we will say EC. So what we have to have it here, first we have to know what is the definition of the emergency contraception. Emergency contraception, EC means unprotected sexual intercourse that has taken place at any time of the natural cycle. Please remember this thing. There is no particular time which we say it, any time. Okay, this we will use is offer, means we will offer that patient any time in the cycle she has unprotected sexual intercourse. Okay ji, this she has to have a natural menstrual cycle. Okay, so what are the indication of this ulipristal, this EC? What are the indication? Indication means we will use it after 21 days of the childbirth, uh, and then unless she has a criteria of lactation and amenorrhea, means she is lactating or breastfeeding, the same thing. So if she is breastfeeding, then it will be after 4 to 6 weeks. 4 to 6 weeks, okay, but before that one, without any thing she is using, so it will be 21 days. So please remember this one, after childbirth without any lactational amenorrhea, 21 days she can use it, emergency contraception. And then 5 days after abortion, miscarriage, ectopic pregnancy, and the uterine evacuation of the gestational trophoblastic disease. So these are four. So this is another indication, and the third indication is that when she is having a sexual assault. Okay, any patient, rape patient, she has been raped. So this is the thing, this is the indication. Please remember, this is a very important question, MCQ question. So remember the day. Now where she can get this emergency contraception, around the corner, means in the pharmacy, any pharmacy she will go, she can have this emergency contraception. But the important point is here, IUCD is not available on the counter shops, because this has to be put by the experienced person who knows how to put the IUCD. So that's the one. वल्लाह अजीम क्या ज़िंदगी होती है इनकी, सही कहते हैं. सो दैट्स द वन वी हैव टू नो अबाउट द कॉपर IUCD. इट हैज़ टू बी पुट इन द clinic which they have it. Okay, so this is the thing we have to know, and then this is where she can have this EC from the clinic, over the counter, this GP. Then she can have in the community medicine, she can have from the sexual health clinic. So there she can get it. So only just the name, not more than that one. Okay, the effectiveness is important. The time period when we have to use this. Time period means copper IUCD we have to use it within 5 days after last, when she has a last time this unprotected sexual intercourse, UPSI. Okay, when she has a last UPSI, if it is within 5 days, we can use it IUCD. Other two are the pills. These are the oral pills. One oral pill is LNG. Okay, levonorgestrel. This is we have to use is 72 within 72 hours of UPSI. 72 hours means within 3 days. But if she has a UPSI within 5 days, then she has to use it LNG. So this is the most important MCQ. If they will give the EC, they will not forget to give you the time limit. So please don't mess the time limit, because these are the figures. Because I am not what you say, Dr. Shazia. पिक्चर चल रही है ना, आ तो रही है.
डॉक्टर सारा, आपको आ रही है पिक्चर? जी बिल्कुल, उनका नेट स्लो है, शायद इस वजह से उनको नहीं मिल रही। उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि उनका नेट स्लो है। तो पिक्चर नहीं जा रही है उनको। तो हाँ जी, डॉक्टर पावर पे। शाजिया, ये उस पे आएगा ना यूट्यूब पे, मैं डाल दूंगी, तो आप उसमें से निकाल लीजिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यूट्यूब से ले लीजिएगा आप, उसमें से आपको सारा है वो, ये गाइडलाइन भी शेयर हो जाएगी, वो भी शेयर हो जाएगी। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे, आई एम सॉरी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो फिर मैं इसको क्या करूं, क्योंकि मैं भी आप ही तक की तरह कंप्यूटर की जाहिल हूँ, जो नहीं कुछ कुछ इतना आता कंप्यूटर का। बस अल्लाह का लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना तो, जितना भी आता उतना तो काम तो हो रहा है ना। तो प्लीज़ आपने ये रट्टा लगाना है ये टाइम पीरियड का, प्लीज़, जो आपको अगर याद भी नहीं रहता है, मुझ जैसी को तो याद नहीं होता ये नंबर्स, आई एम वेरी बैड इन नंबर्स। तो प्लीज़ नंबर्स के लिए आपने इसको या रट्टा लगाना है। विद इन 5 डेज़ हमने दो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं 5 डेज़ के अंदर। और 3 दिन के अंदर, जो 3 दिन के अंदर हमने कौन सी यूज़ करनी होती है, विद इन 72 आवर्स में जो हम करते हैं ना, विद इन 72 आवर्स हमने क्या यूज़ करेंगे, दिस वन LNG। ओके, LNG यूज़ करते हैं विद इन 3 डेज़, और 5 डेज़ मतलब 120 डेज़ में। ओके डॉक्टर, ओके ओके डॉक्टर साहब। तो 5 डेज़ का मतलब होगा 120 आवर्स में हमारे पास दो चीज़ें हैं, यूलिप्रेस्टॉल एसीटेट एंड, ओके डॉक्टर, यूलिप्रेस्टॉल एसीटेट 120 आवर्स में, और हमारा IUCD, दो चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का MCQ का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम कॉपर IUCD यूज़ करते हैं, मरीना हम क्यों नहीं यूज़ करते? देखिए, मरीना इसलिए यूज़ नहीं करते कि उसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, और प्रोजेस्टेरॉन को जब जो बॉडी को वेकअप करने के लिए ना, उसको 4 से 5 दिन लगते हैं। तो इसमें जब हम जो ओके ओके डॉक्टर साहब, तो ठीक है डॉक्टर शाजिया। तो अच्छा डॉक्टर साहब, तो इसमें हमने क्या करना होता है, फिर आई डिस ओके, फिर अब हम ये क्या कर रहे होते हैं कि 5 दिन के लिए हमने दो चीज़ें यूज़ होती हैं, IUCD एंड हमारी जो UPA जो होता है ना, UPA यूज़ करते हैं, मगर अगर हम 3 डेज़ होगा तो LNG यूज़ करते हैं। ठीक है जी, हमारी बात ख़त्म हो गई। कितना है UPA, हाँ 5 दिन का होता, गलत नहीं कर रही, सही बोल रही हूँ। ओके जी, ये अब हमारा काम हो गया। अब हमारी दूसरी चीज़ है, अच्छा अब हमारी बात आती है कि बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर बात होती है। अच्छा हाँ सॉरी, इन सब में इफेक्टिव कौन सा होता है? IUCD होता है, मोस्ट इफेक्टिव होता है IUCD। अब उसके बाद जो दूसरी बात कह रहा है कि अगर आंटी मोटी आंटी हैं, हर बॉडी मार्क्स इंडेक्स जो इंक्रीज़ होता है वो अफेक्ट करता है इन दवाओं पे। तो इस इसी के मेथड पे ये जो IUCD ना, इसको कोई परवाह नहीं है, इसकी बला से मोटी आंटी हो सूखी आंटी हो, इट डज़ नॉट मैटर, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर ये जो दो ओरल हैं जो हम पिल्स लेते हैं ना, इनके लिए प्रॉब्लम है, इनको हमें इनको मसला है, आंटी का मोटा होने का उनको मसला है। तो शी इज़ सपोज टू बी हैविंग, सॉरी यहाँ पे बात कर रहे थे। तो इसमें जो इसका जो वेट है ना, मोर देन 26 होगा। अभी हम करेंगे, नीचे आते हैं BMI पे। तो BMI जो फैक्टर है वो पिल्स के ऊपर अफेक्ट करता है, मगर IUCD पे कोई अफेक्ट नहीं करता, चाहे आंटी कितनी मोटी हो। अब ड्रग इंट्रैक्शन में एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग जो भी कोई ले रहा होता है, उससे एब्जॉर्प्शन टाइम जो होता है ना इन पिल्स का, वो रिड्यूस हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी अफेक्टिवनेस भी डिक्रीज़ हो जाती है, इन EC पिल्स की वो रिड्यूस हो जाती है अफेक्टिवनेस। तो जब वो रिड्यूस हो जाएगी तो जाहिर बात है वो अफेक्ट भी नहीं होगा। मतलब क्या अफेक्ट हमें चाहिए? AC हम क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई? हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। टू स्टॉप द प्रेगनेंसी, वी डोंट वांट टू बी प्रेग्नेंट, दिस इज़ द यू वाई वी आर यूजिंग EC, टू have a unwanted pregnancy, to not to have a unwanted pregnancy. This is the this is why we are using this EC. अच्छा जी, अब ये बात जो कह रहा है कि इसका सॉरी, इसकी जो ड्रग हम यूज़ करते हैं ना एंजाइम इंड्यूसिंग में, तो एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स में जो बेस्ट जो होते हैं ना, अगर कोई यूज़ कर रहा है, जो कोई एपिलेप्टिक पेशेंट है, या उसको कोई डेली यूज़ करना होती है अपनी एंजाइम इंड्यूसिंग जो जिसको लेनी होती है पेप्टिक अल्सर की, और इस टाइप की जो दवाइयाँ होती हैं ना, उनके लिए बेहतर होता है कि दे हैव टू यूज़ इट IUCD। मगर उसमें अगर IUCD नहीं यूज़ कर सकती, तो
अगर वो पिल यूज़ कर रही है तो उसको पिल्स में कौन सा होता है, ये एलएनजी जो होता है ना, इसको बहुत प्रॉब्लम होती है, इसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो एलएनजी को हमने 3 मिलीग्राम का जो डोज़ है ना हम यूज़ करेंगे इसमें। मगर जो डबल कर देंगे ना इसका डोज़, यूपीए का डोज़ हम डबल करते हैं इसमें। मगर सॉरी, यूपी एलएनजी को डबल कर देंगे, मगर यूपीए का जो डोज़ है ना वो डबल नहीं है, डबल नहीं होता, वो रिकमेंडेड नहीं है। बस एलएनजी को वो है, एलएनजी का डबल डोज कर लेंगे, मगर यूपीए का डबल डोज नहीं होगा। आईयूसीडी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये है कि अगर इस टाइप के कंटिन्यूस पेशेंट है, बेस्ट टू यूज़ इट आईयूसीडी। देखिए डॉक्टर साहब, ये एमसीक्यू के ये इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट ड्रग इंटरेक्शन आर रेलिवेंट टू द ईसी। तो ड्रग इंटरेक्शन जो होगी रेलिवेंट उसकी होगी एंजाइम इंड्यूसिंग में जो होगा ना, एलएनजी जो होता है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो एलएनजी को मार पड़ी होती है, उस एलएनजी के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको यूज़ करते हैं आईयूसीडी द बेस्ट। मगर अगर हमें वो आईयूसीडी नहीं यूज़ कर रही है तो एलएनजी हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी, उसको डबल डोज करके यूज़ कर लेंगे। मगर ये है ना यूपीए, इसका कोई तुक नहीं बनती। अच्छा, अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं कि ईसी की क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है। देखिए डॉक्टर साहब, कॉपर की तो कॉपर इंडिकेशन है कि कॉपर की सेंसिटिविटी हो, या फिर उसको सीवियर पीआईडी हुआ हो, या उसको जो होता है क्या नाम है एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, तो उसमें हम कॉपर आईयूसीडी इस वक्त हम यूज़ नहीं करते। या उसको कोई कैंसर हो तो उसमें हम कॉपर की आईयूसीडी हम नहीं यूज़ करते। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जो मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है। अच्छा, अब ये जो बात कर रहा है इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, सीवियर अस्थमा जिन पेशेंट को होता है ना, उसके लिए यूपीए जो है ना, उसके लिए यूपीए सूटेबल नहीं है। जिनको सीवियर अस्थमा है और वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ओरली यूज़ कर रहे हैं ना, उनके लिए यूपीए सूटेबल नहीं है, अस्थमा के लिए और उसके लिए। ठीक है जी, बात इतनी सी थी, ख़त्म हो गई। अब दूसरी बात, अहम बात कर रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन में हम क्या यूज़ करेंगे। ईसी हम यूज़ कर सकते हैं। ईसी में क्या होता है, कह रहा है कि आईयूसीडी द बेस्ट होता है अगर ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन है तो, ठीक है। अगर नॉन ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन है तो 21 डेज़ के बाद वो इस्तेमाल कर सकती है। मगर आईयूसीडी जो है ना वो हम आफ्टर एटलीस्ट नहीं इस्तेमाल करते ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन में, ज़्यादातर कोशिश करते हैं बिफोर 4 वीक्स में, क्योंकि उसको यूट्राइन परफोरेशन का ख़तरा होता है। तो प्लीज़ ये याद रखिएगा कि यूट्राइन परफोरेशन इज़ द प्रॉब्लम ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। नॉन ब्रेस्ट फीडिंग का तो कोई मसला नहीं है, बस इतनी सी बात थी। अच्छा, अब ये बात कर रहा है कि मेथड ऑफ ईसी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है जी, सारे मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। अब की क्या बात कर रहा है कि अच्छा, कह रहा है कि अगर हम एहतियात के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें कि जी हमारे को आज अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है और हम यूज़ कर लें पहले से ही, नहीं ये नहीं होता। कह रहा इट इज़ नॉट लाइक दिस, इन द अर्ली साइकिल हम यूज़ कर लें ताकि हमें जो एवोल्यूशन का पीरियड है ना हमारा निकल जाए, ये तमाशा नहीं होता। अच्छा जी, देखिए एक सब में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आता है, उसमें ये आता है कि कैन वी यूज़ दिस ईसी मोर देन वंस इन अ साइकिल। ओके, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट्स नॉट अ बिग डील के नहीं यूज़ कर सकते, मगर सेम टाइम की यूज़ कर सकते हैं। अगर वो एलएनजी यूज़ करे तो हमने उसको जो दोबारा होगा इंटरकोर्स करके आ रही है तमाशा करके, तो भी हमने वही एलएनजी यूज़ करना है। अगर यूपीए यूज़ कर रही है तो यूपीए ही यूज़ करना है, दूसरी दफ़ा भी आएगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ये एक दफ़ा इंट्रैक्शन डेवलप हो जाती है तो इसको ये फिर अफेक्ट नहीं करती, एब्जॉर्प्शन टाइम का मसला हो जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या कह रहा है कि लेस अफेक्टिव होती है इफ़ टेकन इन द फॉलोइंग 7 डेज। कह रहा है कि एलएनजी, कह रहा है कि अगर इफ़ अ वुमेन है ऑलरेडी ले रही है एलएनजी और हम उसको यूपीए में चेंज करेंगे तो वो लेस अफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि उसको 7 दिन लगते हैं अफेक्ट होने में, तो इस वजह से हम नहीं यूज़ करते। सेम यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, कि कह रहा है कि विच ड्रग्स कैन बी यूज़ फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रासेप्शन। इसी में आईयूसीडी होती है जो कि हम फ्यूचर कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, मगर ये जो ओरल जो होती है ना, ओरल एसी, वी डोंट यूज़ इट फॉर
दिस वन कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ऑनगोइंग कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक है जी। एक चीज़ ये होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि क्या चलें, अगर चलें आगे आ जाएगा, बस ये इतना ही होगा डॉक्टर साहब। अब जो डबल पॉइंट की बात हम कर रहे थे, ये 26 की, हाँ यहाँ पर थी। अगर वो एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग ले रही थी तो यूपीए जो है ना नॉट रिकमेंडेड होती है, बिकॉज अगर सीवियर इस्तेमा होता है, ये तो हमने कर लिया ना। हाँ, अगर उसको बीएमआई एलएनजी जो होता है ना, एलएनजी हम 3 मिलीग्राम यूज़ करते हैं, अगर उसका बीएमआई मोर देन 26 है तो प्लीज़ ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये जो चल रहा है ना आपके सामने रेड वाला, तो ये इसको मोर देन 26 होगा अगर उसका बीएमआई है, तो हम 3 मिलीग्राम के एलएनजी यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हाई बॉडी मास इंडेक्स है, बीएमआई उसका ज़्यादा है, ठीक है जी। अभी आपने हम कर चुके हैं कि भाई इसकी इंडिकेशन कौन कौन सी होती है, ठीक है जी, ये हमने कर लिया, अब दोबारा नहीं रिपीट करने का हमारे पास टाइम हैगा। थ्योरी के बात बता रही हूँ डॉक्टर साहब, ये जो होता है ना ऑस्के की बात दूसरी हो जाती है। बॉडी मास इंडेक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, 20 बीएम अगर 26 किलोग्राम स्क्वायर मीटर है, या उसका बॉडी वेट जो है ना, वेट जो है मोर देन 70 केजी है, तो उसमें जो हम एलएनजी का जो है ना रिड्यूस करता है एफिकेसी का उसको, तो ठीक है जी। इट इज़ रिकमेंडेड दैट आइदर यूपीए और अ डबल डोज ऑफ एलएनजी इज़ गिवन। तो इनको फिर हम क्या देते हैं, अगर ये हम देते हैं इसको डबल डोज। एंजाइम इंड्यूसिंग अभी हम कर चुके हैं, तो वही वाली बात को दोबारा रिपीट कर रहा है, ऐसी कोई मसला नहीं है, दोबारा रिपीट करने का हमारे पास टाइम नहीं है। अब अफेक्टिवनेस की बात हम करते हैं, ये कितनी अफेक्टिव होती है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। देखिए डॉक्टर साहब, अब ये नीचे चल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें आएंगी, समझ आ रहा है डॉक्टर साहब? मेरे सामने कौन है? डॉक्टर शाजिया गायब हो गई हैं, जी डॉक्टर जी सारा पल्ले जी, पड़ रहा बिल्कुल है, समझ आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, पल्ले पड़ रहे हैं। अच्छा देखिए, अब बिल्कुल। डोज़ की बात करते हैं, प्लीज़ याद रखिएगा डोज़, ठीक है। जी अब डोज़ उसका क्या नाम है, आईयूसीडी का तो डोज़ होता है ना 375 का, जो मोस्ट कॉमन है ना 375 माइक्रोग्राम वाला यूज़ होता है। अब जी यूलिप्रोस्टॉल जो होती है ना, वो 30 मिलीग्राम की हम यूज़ करते हैं एज अ सिंगल डोज, और एलएनजी होता है 1.5। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा कि आधी हो जाएगी 1.5 उसकी, जी एलएनजी 1.5 मिलीग्राम सिंगल डोज यूज़ होता है, और यूपीए जो होता है ना 30 मिलीग्राम होता है। प्लीज़ ये डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, डोज इंपॉर्टेंट है इस एसी में, और टाइम इंपॉर्टेंट है। जी 3 डेज़ 5 डेज़ की जो लव स्टोरी है वो आपने याद करनी है, ओके। जी अच्छा, अब ये हमने कर लिया, अब हमारी आगे बात करते हैं कहाँ कहाँ मिलती है। अच्छा, अब ये जो है ना, बाज़ दफ़ा ये क्वेश्चन आता है आपका एमसीक्यू का कि ये कैसे वर्क करते हैं। अच्छा, एक बात इसमें याद रखिएगा कि जो स्पर्म होते हैं ना विजाइना में, ये 5 से 7 दिन तक ज़िंदा रहते हैं। 5 डेज़ जो मोस्ट कॉमन है, 5 डेज़ है। जी आफ्टर अनप्रोटेक्टिव सेक्शुअल इंटरकोर्स जो होता है ना, उसके बाद ये 5 दिन ज़िंदा रहते हैं विजाइना में, वो घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं किसी अंडे को जी पकड़ने के लिए, ठीक है जी। उनका काम जी ये होता है कि अंडे को पकड़ने के लिए घूम रहे होते हैं, ज़िंदा रहते हैं। तो फिर जी क्या करता है कि ये जो स्पर्म जो वायबल होते हैं ना जेनाइटल ट्रैक में, इसको ओवुलेशन जो अकर हो रही है, मतलब इसको जो ओवुलेशन अकर होगी विद इन 5 डेज़ के लिए, फर्टिलाइजेशन ज़ाहिर बात है होगी, फर्टिलाइजेशन उसको ये रोकता है। अब कैसे रोकते हैं, कौन क्या काम करता है, अब हमारी बात होती है। अच्छा, अब हमारा जो ये क्वेश्चन है ना, ये आईयूसीडी का क्या काम होता है, प्राइमरी मैकेनिज़्म क्या होता है इसका, प्राइमरी इनहिबिट द फर्टिलाइजेशन करता है बाय इट टॉक्सिक अफेक्ट ऑन द स्पर्म एंड द ओवा। तो ओवम और स्पर्म पे जो होता है ना, ओवा पे और स्पर्म पे इसका टॉक्सिक अफेक्ट होता है। किसका अफेक्ट होता है? कॉपर का। कॉपर जो है ना जी टॉक्सिक अफेक्ट करती है स्पर्म को और ओवा को, एक काम ये करती है। और जी दूसरा काम क्या करती है कि इसकी एडवर्सली अफेक्ट करता है, ये मोटिलिटी करता है ना, ये घूमता फिरता रहता है, उसके घूमने पे ये अफेक्ट करती है, और उसकी वाइबिलिटी का अफेक्ट करती है स्पर्म की। इसके दूसरा जी फंक्शन ये, प्राइमरी तो ये है कि इनहिबिट करती है फर्टिलाइजेशन बाय टॉक्सिक अफेक्ट। सेकंड क्या करता है कि मोटिलिटी को और वाइबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करती है। 2 फंक्शन हो गए। जी
और अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है, क्योंकि आईयूसीडी जो होता है ना, ओवा के रिलीज़ होने के 5 दिन बाद तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 दिन पहले ओवुलेशन के और 5 दिन बाद ओवुलेशन के हम यूज़ कर सकते हैं। कह रहा है कि अगर ओवुलेशन हो गई है, फिर भी अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है, फिर भी अगर हो गई है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ना आईयूसीडी इन्फ्लामेटरी रिस्पांस करता है, तो उसकी वजह से प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन। तो ये इसका थर्ड फंक्शन है। इनहिबिट फर्टिलाइजेशन मोटिलिटी को और वाइबिलिटी पे अफेक्ट करता है, और मतलब ये वाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओआ पे। और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन बाय द इन्फ्लामेटरी रिस्पांस। बस इसका इतना काम होता है आईयूसीडी। डॉक्टर साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसका याद करना है आपने। आईयूसीडी अब देखें क्या रहा है, इंसर्ट अप टू 5 days आफ्टर द फर्स्ट अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स इन द साइकिल। ओके जी, फर्स्ट डे में हो सकती है, मगर ये कह रहा है कि जाहिर बात है आईयूसीडी तो एक दफ़ा लग गया तो लग गया ना, बात ख़त्म हो जाती है। अब ये बात कर रहा है इसकी यूलिप्रोस्टॉल एसीटेट की। तो यूपीए का जो है ना 30 मिलीग्राम का जो डोज़ है ना, ये हम यूज़ करते हैं। ये होता क्या है, यूलिप्रेस उसमें तो कॉपर होती है ना यूसीडी में, इसमें क्या होता है यूलिप्रोस्टॉल एसीटेट में, ये क्या है ना सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, इनहिबिटर और मॉड्यूलेटर, इसका नाम ये है। यूलिप्रोस्टॉल एसीटेट में प्रोजेस्टेरॉन होती है, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर को ये इनहिबिट करते हैं, या मॉड्यूलेटर कह लें या जो भी कुछ कह लें। तो ये क्या काम करता है, ये डिले करता है ओवुलेशन फॉर एटलीस्ट 5 days। ओवुलेशन जो होती है ना रिलीज़ होने ओवा को, ये रिलीज़ होने को रोकता है 5 दिन तक। ओके जी, अनटिल द स्पर्म हैज़ बिन डाइड, मतलब नो मोर वायबल स्पर्म हो, स्पर्म भाग चुका हो, तो 5 दिन में तो स्पर्म ने ख़त्म होना है ना। बिल्कुल। तो ये जो होगी ना, हाँ जी। ये भी 5 दिन तक उसको करके रोक के रखेगी। ये यूपी है अंकल, ठीक है, यूपी अंकल इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। और एलएनजी अंकल क्या करेंगे, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है ओवुलेशन, वो भी इनहिबिट कर रहा है ओवुलेशन का, मगर जी, फ़र्क क्या जी, है बिल्कुल। कि वो डिले करता है। प्लीज़ ये डिफरेंस याद कीजिएगा। यूपीए जो जी, करेगा डिले करता है ओवुलेशन का, और डिले करता है, और ये करता है एलएनजी इनहिबिट करता है। देखिए डॉक्टर साहब, जी, इनहिबिट और डिले में फ़र्क है। ये 5 दिन जी, तक जी, उसको रोक के रखता है, ओके, जी, ओवुलेशन को डिले करता 5 दिन तक के लिए एक्ट होने से पहले। मगर एलएनजी क्या करता है, इनहिबिट ही कर देता, ओवुलेशन को होने ही नहीं देता है। फ़र्क है। तो इसलिए ख़तरनाक क्या हुई, यूपीए ख़तरनाक है, क्योंकि 5 दिन बाद ओवुलेशन हो सकती है ना, और वो इंटर कोर्स भी हो सकता है। तो समझ आ गई बात कि एलएनजी जो होता है ना इनहिबिट करता है, और यूपीएच करता है ओवुलेशन का जो ना डिले करता है। एनीवे चलें, बात ख़त्म हो गई। अप टू नेक्स्ट 5 days, ये जो अभी हमने बात की थी वो बात, इतनी बात ख़त्म हो गई हमारी। अच्छा, कितने अफेक्टिव हैं ये वाला प्रेगनेंसी के लिए? देख डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आईयूसीडी कितना अफेक्टिव है? आईयूसीडी अफेक्टिव है प्रेगनेंसी का जो रेट होता है ना, आईयूसीडी इंसर्ट हुआ और उसके बाद वो मैडम प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो लेस देन 0.1% रिस्क है। ये याद रखना है आपने, ये आपका क्वेश्चन है आपका, लेस देन 0.5 0.1। सब मेरी इस कदर नींद आ रही है। ओके, चलें, ये हुआ इसमें इसका फेलियर रेट, मतलब प्रेगनेंसी का हो जाता है इसमें। अब ओरल एसी की बात करते हैं, ईसी की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, यूलिप्रोस्टॉल एसीटेट हम 120 आवर्स के अंदर अंदर दे सकते हैं ना, और जो हमारा जी, एलएनजी अंकल हैं उनको हम दे सकते हैं विद इन 72 आवर्स में हम दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका जो फ़र्क है ना, इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ, तो ये जो यूपीए जो है ना अफेक्टिव है प्रिवेंट करने का, प्रेगनेंसी की जो फेलियर रेट है ना इसमें कितनी है, इसकी 1 to 2% है यूपीए की। यूपीए की 1 to 2% है। प्लीज़ ये फिगर्स याद करनी है, और यही वाली गाइडलाइन के अलावा और कहीं से नहीं याद करना, इसलिए मैंने यही गाइडलाइन लगाई है। अच्छा जी, इसका क्या होता है, एलएनजी कितना होता है, 0.6 to 2.6%। 0.6 to 2.56% जो होता है ना फेलियर रेट होता है, प्रेग्नेंट हो जाती है वुमेन इसके इस्तेमाल जी, करने के बावजूद भी।
इसका बस इतना ही होगा। और BMI का तो हम कर चुके हैं ना, BMI में जो 26। हाँ 26, मोर देन 26 और 70 kg। ओके। और जी। ये जो दूसरी वाला है ना, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। LNG का है, LNG अफेक्ट करता है। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसका डबल डोज करते हैं। ओके। LNG। LNG का ना 4 टाइम्स हायर रिस्क होता है प्रेगनेंसी का, बनिस्बत के लेस देन अगर 70 kg से कम होगी आंटी तो। ठीक है। ठीक। अच्छा, ये हमारा हो गया। इसमें हमने बता दिया डबल डोज। डॉक्टर साहब बस ये ड्रग की इंस्ट्रक्शन भी बता दी है कि ये रिड्यूस हो जाता है तो वो हम डबल देते हैं। डॉक्टर साहब इससे ज़्यादा की ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है इतना काफ़ी है। क्योंकि वो जो हमारा ज़्यादा फैलने का होगा डॉक्टर साहब, बस उन्हें वो चाहिए प्रेगनेंसी का कहने को। डॉक्टर साहब इसके 68 पेज है, मैंने इसको शॉर्ट करके बता, इतना ही मुझे समझ आया है। इससे ज़्यादा मेरे देखिए, मैंने सारा पूरा पढ़ा है, इसके बावजूद भी पहले ख़ुद पढ़ा है मैंने। कॉन्ट्राइंडिकेशन, जी। इंडिकेशन सब कुछ तो मैंने बता दिया, अब रहा क्या है। अब अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा 68 पेज, मेरे में हिम्मत नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक है, अब आप वो कर लेते हैं। सॉरी, इसका MCQs का इसको हम बंद करते हैं।